अच्छा भाई, in last class we were trying to make the electronic configuration of the element. I think we have also discussed the electronic configuration of the D block, that is all the elements in between group 2 and group 13. हमने तो बहुत ज्यादा पढ़ लिया है। ठीक है। अच्छा, हमारी ये बात भी हो गई थी, when you are making the electronic configurations, you have, after filling, this is the filling order of the orbitals, right? You have to fill the electrons in this order. You need to learn this order. In case you forget this order, then we have Aufbau's rule for filling the electrons in the orbitals. Otherwise, it's better that you learn this order up till 5s. I would recommend you learn it up till 5s. ठीक है, मोस्टली यू विल बी नीडिंग अप टिल 3D, बट 4p एंड 5s तक याद कर लेना। 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p and 5s. So this is the filling order of the electrons in the orbitals. After you are done with the filling of these electrons, you need to swap between 4s and 3d. 4s orbital is filled first and 3 orbital is filled after 4s. But after you are done with the filling, you have to write the 3d orbital before 4s orbital, because after the electrons are filled, this 3d orbital moves to the lower energy level and the 4s orbital moves to the high energy level. ठीक है, यहां तक हमारी बात हो गई थी, रिमेंबर? ठीक है, I must have asked you to draw some electronic configuration of some of the elements, but right now we have to make the electronic configuration of the D block elements, because D block हमने पूरा नहीं किया था। D block में we just started from scandium, which is the first element of the D block. D block is all the elements in between group 2 and group 13. ठीक है, we have already discussed that now we have 18 groups in total, because although elements in between group 2 and group 3 back in O level that you used to call transition elements, now we won't call all of these elements as transition element, we would call them a D block element. Okay, and the first row of the D block element starts from scandium. Scandium has an atomic number of 21. If you make the electronic configuration of scandium, the filling order would be this: 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s and 3d. But after you are done with the filling of electrons, you have to write 3d orbital before 4s orbital. Now let's practice some more from this first row of D block element. After scandium, the first one was a scandium, ठीक है, atomic number 21. We have to fill in 21 electrons, and the filling order, you have to remember the filling order. I asked you guys to make sure to write this filling order in around 20 to 25 pages of your atomic structure. जो भी आप notes यहाँ पे लिख रहे हो, this filling order would be like this: 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d. Then you have 4p and then you have 5s. ठीक है भाई? So you have to fill in 21 electrons. So 1s will contain 2 electrons, 2s will hold up to 2 electrons, 2p, p subshell can hold maximum of 6 electrons, 3s can hold up to 2 electrons, 3p can hold up to 6 electrons, and 4s can hold up to 2 electrons. So up till now, till 4s, you have added how many electrons? 20 electrons. Actually, I have remembered that up till 4s, there are always 20 electrons. Now, for 21 electrons, you have to use the 3d orbital, and 3d orbital will only contain 1 electron, because you have to add up of total of 21 electrons, not more than that. But this is the filling order. You won't write the electronic configuration of scandium in this way. How would you write the electronic configuration of scandium? You have to write 3d before 4s. मतलब after filling you have to swap the places. मतलब ऐसा नहीं करना कि filling से पहले ही जो है आप 3d को पहले, अगर मैं 3d को पहले fill करने बैठ जाऊं तो फिर 4s में तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं आना ना. 3d can hold up to maximum of 10 electrons, so then I would put 3 electrons in this 3d orbital. हम 3d में हमने 1 ही है, लेकिन fill होने के बाद it will move to the lower energy level, so the final electronic configuration of this scandium atom would look something like this. You will have 3d, 1 and then 4s2. Got my point?
So that's how you will write the electronic configuration of scandium atom. After scandium, you have titanium. Titanium has an atomic number of 22. If you fill all the orbitals of titanium in this order, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, and 3d2. However, you won't write the electronic configuration like this. उसमें आप क्या करोगे? You will swap the places of 3d and 4s orbital. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d2 आप पहले लिखेंगे and 4s2 आप बाद में लिखेंगे. Although d subshell can hold up to 10 electrons, but right now we can only see 2 electrons over here. And the other 2 electrons are in 4s2. This tells you, or this confirms you, that the 3d orbital must have been filled before 4s. 3d पहले fill हुआ है बेटा, 4s बाद में fill हुआ है, लेकिन fill होने के बाद वो पीछे आया. That's why 3d has only 2 electrons, क्योंकि पहले 4s fill हुआ था, 4s में maximum 2 आ सकते थे, 2 आ गए, उसके बाद 3d fill हुआ. But after the electrons are filled, 3d moves to the lower energy level than 4s. So you have to write 3d before 4s. ठीक है, आगे बढ़े. After titanium, we have vanadium with the atomic number 23. Vanadium's atomic number is 23. If I just asked you to write directly the electronic configuration of vanadium, I mean, आप देखो 1s, 2s, 2p, 3s, 3p. अब you know कि 4s will be filled first, but after filling we will write 4s after 3d. हम 4s को फिल पहले करेंगे, लेकिन हमें लिखना बाद में. तो मैं कह रहा हूं डायरेक्टली 4s को बाद में लिख दो ना, पहले फिल कर दो. कितना इतना मुश्किल तो नहीं है ना. अब आपने 3d में इलेक्ट्रॉन नहीं डाले. अभी यहां तक कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 + 2 10 and 2 12 and 12 + 6 is 18. You have to fill how many more electrons? You have to fill 2 3 4 more electrons. तो आपने क्या करना है? 4s में 2 इलेक्ट्रॉन्स डाले और फिर 3d में अब जितने भी इलेक्ट्रॉन्स बचे आप 3d में डाल दो. सॉरी, यू हैव टू फिल 5 मोर इलेक्ट्रॉन्स. 23 बनाना था ना. ठीक है, तो आप डायरेक्टली बना सकते हो. मतलब पहले मैं गलत वाली लिखूं फिर मैं उसको फिर स्वैप करके सही लिखूं, इससे अच्छा ये नहीं है कि मैं डायरेक्टली फाइनल वाली लिख दूं. आफ्टर वेनेडियम वी हैव क्रोमियम. चलो क्रोमियम की हम उसी तरह से करते हैं. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. 3p6 के बाद क्या आना चाहिए? 3p6 के बाद आना चाहिए 4s2 and then 3d4. राइट, मेक सेंस. अब एक प्रॉब्लम है क्रोमियम में. क्रोमियम का जो 4s ऑर्बिटल होता है ना, इट s ऑर्बिटल कैन होल्ड, और s subshell has one orbital and it can hold 2 electrons. We know that, right? But for chromium is an exception. You guys know what exception is? Chemistry में ना ये word आपको बहुत दिखता है, exception. मतलब anything that does not follow a general rule. देखो basically elements हमने बनाए नहीं है. We have just discovered these elements and we have studied के इनके कहाँ पे क्या इलेक्ट्रॉन्स है, कितने इलेक्ट्रॉन्स है, एटॉमिक नंबर क्या है, न्यूक्लियॉन नंबर क्या है, राइट? जब हमने क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखी ना, तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो इसी तरह से बनती कि 4s2 होता और फिर 3d में 4 इलेक्ट्रॉन्स आते. बट द क्रोमियम 4s सबशेल डज नॉट होल्ड 2 इलेक्ट्रॉन्स, इट होल्ड ओनली 1 इलेक्ट्रॉन. मतलब क्रोमियम के 4s में 2 इलेक्ट्रॉन्स नहीं आते बेटा, इसमें आता है 1 इलेक्ट्रॉन. अब अगर 4s में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, इट मींस वी हैव टू ऐड अप ऑफ टोटल ऑफ 24 इलेक्ट्रॉन्स. तो 3d में फिर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे? 5 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे. But obviously we won't write the electronic configuration of chromium like this, because after filling the electrons in chromium as well, 3d subshell will move to the lower energy level and 4s subshell will move to the high energy level. With all the electrons it has already, 4s will move to the high energy level. So chromium is an exception that you need to remember, that chromium 4s subshell does not hold 2 electrons, it only holds 1 electron. Otherwise, for rest of the other elements of the periodic table, all of the elements 4s subshell will hold 2 electron except for chromium, and there is one other element in this D block which is copper.
chromium and copper 4s will only hold one electron. That is an exception that you need to remember. Again, obviously, your mind would be boggling कि why? There should be a reason behind it. बाकी सब एक चीज फॉलो कर रहे हैं, ये दोनों क्यों नहीं फॉलो कर रहे? तो अगेन yes, there is a reason, but again we are not supposed to learn this reason. हमें पढ़ना नहीं है ये लेवल में ये रीजन. ठीक है. अगेन मैं थोड़ा सा अगर आपको आइडिया दूं, जैसे हमने लास्ट क्लास में बात की थी कि हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल वाई 4s इज एट अ लोअर एनर्जी लेवल देन 3d, तो वो कुछ शेप ऑफ ऑर्बिटल्स ऐसे होते हैं जिसकी वजह से ये होता है कि 4s के इलेक्ट्रॉन जो है वो वैसे तो 3d का जो रीजन है वो पीछे होना चाहिए था, 4s का उससे भी बाहर होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता है. अब उसके लिए आपको डी सबशेल का शेप पढ़ना पड़ेगा, वो शेप आपने एएस लेवल में नहीं पढ़ना है. तो हम उस कॉम्प्लिकेशन में अभी आपको लेके जाना ही नहीं चाह रहे. तो फॉर नाउ यू हैव टू रिमेंबर ऑल ऑफ दीज थिंग्स, और स्पेशली फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट. देखो, एक तो हम इसको ये कह सकते हैं ना कि भाई 3d पहले फिल हुआ, सॉरी 4s पहले फिल हुआ फिर 3d फिल हुआ, बट आफ्टर फिलिंग 3d और 4s स्वैप हो गए. एक तो एक्सेप्शन ये हो गई जो पूरे प्रोडक्ट टेबल पे एज इट इज पूरे प्रोडक्ट टेबल पे इन्फोर्स होगी सारे एलिमेंट्स के लिए. लेकिन विद इन डी ब्लॉक you have to make the electronic configuration of the first row of D block. First row of D block मतलब अगर आप प्रोडक्ट टेबल देखें तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट रो ऑफ डी ब्लॉक जो होती है इट स्टार्ट्स फ्रॉम स्कैंडियम, ठीक है, एंड इट एंड्स एट जिंक. तो इसके लिए इस रो में भी हमारे पास दो एलिमेंट्स में एक्सेप्शन आ जाती है, एक क्रोमियम में आ जाती है और एक कॉपर में आ जाती है. वो एक्सेप्शन क्या है कि chromiums and coppers 4s subshell does not hold 2 electron, they hold only 1 electron. कभी आगे बढ़ के जब थोड़ा सा हमारे पास स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट स्ट्रेंथन हो जाएंगे तो हम आगे बढ़ के जरा शेप ऑफ सबशेल्स देख के ये वाला रीजन भी डिस्कस जरूर कर लेंगे, बट हमें इस रीजन को याद करना, इसको लिखना, क्या ये हमारा एसेस होगा नहीं होगा, तो हमें अभी फिलहाल इस रीजन में जाने की जरूरत नहीं. ठीक है जी. मूविंग ऑन, आफ्टर क्रोमियम वी हैव मैंगनीज. Manganese has an atomic number of 25. If you make the electronic configuration of manganese, this is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Again, we will fill 4s first. 4s को फिर पहले फिल करेंगे और 3d को बाद में फिल करेंगे. चलो पहले फिल कर देते हैं, लेकिन फिल करने के बाद आपको पता है कि ऑर्डर स्वैप हो जाएगा. मैंगनीज के 4s में मैंगनीज विल होल्ड 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एंड देयर विल बी 5 इलेक्ट्रॉन्स इन दी 3d ऑफ मैंगनीज. ठीक है, इसमें सेम है जैसे सिर्फ क्रोमियम में आएगा ये मसला और कॉपर में आएगा कि इनके 4s में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा. बट ऑब्वियसली वी वोंट राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मैंगनीज लाइक दिस. हमें क्या करना होगा, आफ्टर फिलिंग वी हैव टू राइट 3d first and then we will write 4s. So it should be 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. We will write 3d5 first and then we will write 4s. So this is the right way of writing the electronic configuration of a manganese element. After manganese we have iron. Iron's atomic number is 26. So I will just write the final electronic configuration of iron atom. There should be 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. We will fill 4s first, but we will write 4s after 3d. So 4s will hold 2 electrons for iron, 4s2 and 3d 6. हो गया 26. क्लियर है यहां तक या किसी को कुछ पूछना है? आफ्टर आयरन वी हैव कोबाल्ट विद द एटॉमिक नंबर 27. इसकी भी मैं डायरेक्ट फाइनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूं, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. We will fill 4s first, but we will write 4s after 3d. तो मैंने 4s पहले से ही आगे लिख दिया है 3d से, लेकिन फिल मैं पहले करूंगा 4s को. 4s2 and 3d 7. तो क्या 27, 4s2 तक 20 हो जाते हैं. अब d में 7 डालेंगे तो 27 हो जाएगा. After cobalt we have nickel atom.
Nickel has an atomic number of 28. Again, I will write down the final electronic configuration of nickel. This is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. 4s will be filled first. It contains 4s2 and then 3d8. Right? Then we have copper. Copper has the same exception as that of chromium. Atomic number of copper is 29. If I just write the electronic configuration of copper directly, we would write 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. We will fill 4s first, but we will write 4s after 3d. ये तो सबका ही रूल है ना, सबका जनरल रूल है, पूरे प्रोडक्ट टेबल में ऐसा करेंगे। 4s को फिल करने के बाद हम पहले लिखेंगे, मतलब 3d के बाद में लिखेंगे, फिल पहले करेंगे, and then we will fill 3d. But copper has another exception. क्रोमियम की तो एक एक्सेप्शन है ना, वही एक्सेप्शन कॉपर की भी है। वो एक्सेप्शन क्या है कि copper's 4s subshell also does not hold 2 electron, it holds only 1 electron. ठीक है, तो 3d में फिर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे? 9 इलेक्ट्रॉन्स। ऐसा बेसिकली इस वजह से है, थोड़ा सा मैं बता देता हूं ताकि इतना ज्यादा वो ना उससे हो। बेसिकली कॉपर और क्रोमियम जो मेटल्स है ना, उनकी कॉपर इज अ डेंस मेटल। कॉपर आपको पता है ना, एक मेटल है जो आपने डेली लाइफ में देखा हुआ भी है। कॉपर एंड क्रोमियम आर बेसिकली अ वेरी डेंस मेटल। और ये जो फर्स्ट रो ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स है ना, ये वाले जो एलिमेंट्स है, ये कोई बहुत ही कॉमन मतलब कोई ऐसे मेटल्स नहीं है बस जिनके बारे में पढ़ो और भूल जाओ। ये आपको डेली लाइफ में दिखेंगे। भाई, आपके पास जो सबसे इंपॉर्टेंट मेटल है दैट यू यूज अराउंड यू, दैट इज योर आयरन मेटल। जितना भी स्ट्रक्चर बना हुआ है, योर बिल्डिंग्स, योर कार बॉडीज, योर शिप्स, योर एरोप्लेन, दे आर ऑल मेड अप ऑफ स्टील, एंड स्टील इज एन alloy of iron. So iron is one of the most important element that you use in your daily life. Similarly, copper is the second most important element metal that you use in your daily life, because all the electric wirings that you are using, it is made up of copper. देखिए, ये कोई मेटल इस तरह के कॉमन मेटल्स नहीं है, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट मेटल्स हैं हमारे लिए। ठीक है, इसी तरह अगर आप बात करो टाइटेनियम की, टाइटेनियम तो बहुत रेयर मेटल होता है, एक्सपेंसिव मेटल होता है, लेकिन बहुत सारी जगहों पे यूज हो रहा होता है। लेकिन आयरन एंड कॉपर की इंपॉर्टेंस तो आपको बहुत अच्छी तरह से पता है। हाँ, क्रोमियम, क्रोमियम इज अनदर इंपॉर्टेंट मेटल। अगर आपकी जो रेलिंग्स होती हैं स्टेयर केस की, या जिसको जो चमकता हुआ मेटल होता है क्रोम कहते हैं, या जो बाइक्स वगैरह अगर किसी ने देखी हो तो साइलेंसर जो होते हैं बाइक्स के, वो क्रोम हुए हुए होते हैं। तो क्रोमियम की भी अपनी एक बहुत इंपॉर्टेंस है। अच्छा, क्रोमियम और कॉपर जो है ना, थोड़े से डेंस मेटल है, मतलब दे हैव अ गुड पैकिंग ऑफ एटम्स, एटम्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। तो जब एटम जब एक दूसरे के ज्यादा क्लोज होते हैं ना, तो होता है क्या है कि जो कॉपर और क्रोमियम का 4s और 3d होता है ना, उनके बीच में ज्यादा एनर्जी गैप नहीं होता, जिसकी वजह से कॉपर और क्रोमियम के जो 4s के दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके 3d में चला जाता है। ठीक है, दैट्स व्हाई व्हेन वी try to find the number of electrons in a copper atom, we find it in 4s में हमें एक मिलता है, जबकि दो मिलने चाहिए। बाकी सब एलिमेंट्स के 4s में दो इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, कॉपर और क्रोमियम के एक मिलता है। तो उसका जो मैं आपको ऊपर ऊपर से रीजन बता सकता हूँ ना, वो ये बता सकता हूँ कि भाई डेंस मेटल है, उनका जो पैकिंग है वो क्लोज क्लोज है, जिसकी वजह से जो उनके ऑर्बिटल्स हैं या उनके जो सबशेल्स हैं, दे आर क्लोज टुगेदर। तो 4s और 3d में जो एनर्जी गैप होता है वो कम होता है, मतलब कुछ में अगर एनर्जी गैप ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन दे जस्ट कैन नॉट हॉप फ्रॉम वन ऑर्बिटल टू द अदर ऑर्बिटल। बट 4s और 3d में क्योंकि एनर्जी गैप कम होता है, स्पेशली कॉपर और क्रोमियम के, तो some of the, one of the electron from their 4s can move into the 3d। ठीक है, हाँ, अब you can ask it the other way around. Why not the electron from the 3d can move to the 4s? Because electrons they actually prefer in moving from a low energy level to the high energy level। ठीक है, 4s जो होता है वो बेसिकली फिल होने से पहले लोअर एनर्जी लेवल पे होता है। ठीक है, फिल होने से पहले वो लो एनर्जी लेवल पे होता है, लेकिन जब उनमें इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं ना, तो वो हाई एनर्जी लेवल पे जाता है। एंड वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स दे बेसिकली कैन इजीली मूव फ्रॉम द हाई एनर्जी लेवल टू द लो एनर्जी लेवल, समझ लो एकदम से नीचे गिर जाता है। ठीक है, अब इसी तरह से 3d से 4s में भी जाना चाहिए। क्या 3d से 4s में जाते हैं?
3D से 4s में जाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है उनके लिए, क्योंकि उसके लिए फिर एनर्जी चाहिए होती है। हाँ, विद इन 3D भी उनकी ना कुछ मूवमेंट हो रही होती है, जो कि आप A2 में पढ़ोगे। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट है ना फ्रॉम वन ऑर्बिटल टू द अदर ऑर्बिटल, बेसिकली दिस गिव्स द ट्रांजिशन मेटल्स देयर रिस्पेक्टिव कलर्स. You have been studying it from O level that transition metals have a very unique property, which is they form colored compound. Rest of the other metals of the periodic table, they form only white compound, but the transition metals can form colored compound. और colored compound जो बनते हैं वो इसी वजह से बन रहे होते हैं. ठीक है, बट अगेन हम अपने उससे बहुत ज्यादा आगे नहीं जाके इसको डिस्कस करते, लेकिन थोड़ा सा मैंने आपको ऐसी आइडिया दे दिया, इसलिए मैं वो लिखवा भी नहीं रहा हूँ रीजन. So after copper, we have zinc. Zinc's atomic number is 30. If you make the final electronic configuration of zinc, it should be 1s2. फाइनल का मतलब है आपको यही वाली बनानी है, मतलब यू हैव टू फिल 4s फर्स्ट, बट यू हैव टू राइट 4s आफ्टर 3d. So 4s will be filled first. It will have 2 electrons. Zinc में 2 electrons ही होंगे, and its 3d will hold up to how many electron? 10 electrons. अच्छा, कॉपर में भी 3d 9 लिख दिया है मैंने. It shouldn't be 3d 9, it should be 3d 10. 4s 1 तक 19 इलेक्ट्रॉन्स हुए ना, 3d में 10 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे. जुनैरा, कलर्स वाली बात जो है मैं ऐसे ही कर रहा था. अभी आपको नहीं पढ़ना, यू विल स्टडी दैट इन A2. A2 में ट्रांजिशन मेटल्स पे एक पूरा चैप्टर है. ठीक है, वो कलर्ड वाली बात ये थी कि वी वर डिस्कसिंग कि भाई 4s से इलेक्ट्रॉन जो है वो 3d में आ गया है, तो क्या 3d से 4s में भी जा सकता है? हाँ, देयर इज अ पॉसिबिलिटी वो जा सकता है, लेकिन उसके लिए हमें कुछ एक्सटर्नल कंडीशंस देनी होती हैं. और विद इन 3d भी इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव कर रहे होते हैं. तो मैं ये बता रहा था कि जब ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं ना ट्रांजिशन मेटल्स में, तो इसकी वजह से कलर्ड कंपाउंड भी बनते हैं. ट्रांजिशन मेटल्स ही सिर्फ कलर्ड कंपाउंड बनाते हैं ना, और तो बाकी सारे व्हाइट कलर के बनाते हैं. ठीक है, बाकी सारे मेटल्स व्हाइट कलर के कंपाउंड बनाते हैं. ट्रांजिशन मेटल्स ओनली फॉर्म कलर्ड कंपाउंड्स. ठीक है भाई, याद रहेगी ये बात. पूरे periodic टेबल में यू हैव टू मेक श्योर दैट यू हैव टू फिल द 4s सबशेल फर्स्ट, देन यू हैव टू फिल 3d, बट यू विल राइट 4s आफ्टर 3d. 4s फिल पहले करोगे, फिर 3d फिल करोगे, लेकिन 4s को फिल करने के बाद में लिखोगे. And within the first row of D block element, in chromium and copper, you have to only put 1 electron in their 4s. उसमें 4s2 नहीं होता, 4s1 होता है. तो ये एक्सेप्शन सिर्फ कॉपर और क्रोमियम में. तो दो डिफरेंट चीजें आपको यहाँ पे याद करनी पड़ेंगी. ठीक है भाई, सो फार सो गुड. समझ आइए बात यहाँ तक? आगे बढ़े. ओके. अरे बच्चे, रिजल्ट को अच्छा भाई. अच्छा, ये तो हमने दादा हुआ है, पढ़ा नहीं है. अच्छा, हमने रूल्स फॉर मेकिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना स्टार्ट किए थे, और हमने उसमें अभी तक एक रूल पढ़ा था जिसके यूज करके हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो बनाना आ गए. वो रूल था ऑफ बॉस रूल, एंड ऑफ बॉस रूल टेल्स अस दैट द इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन द लोअर एनर्जी ऑर्बिटल फर्स्ट. ठीक है, ये ऑफ बॉस रूल था, और हमने देख लिया था कि किस सब शेल को पहले पहले फिल करेंगे, फिर किस सब शेल को बाद में फिल करेंगे. ठीक है, हम कंटिन्यू कर रहे हैं रूल्स फॉर मेकिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से. How much time is left? Already 24. देखो, our first rule was of Boss rule, और इसी एक रूल से हमने सारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना सीख ली है.
ठीक है, एंड दिस रूल सेज दैट लोअर, अच्छा यू आर नॉट सपोज टू रिमेम्बर दिस रूल्स बट इनको एग्जीक्यूट करना आना चाहिए, एग्जीक्यूट आप ऑलरेडी करना सीख गए हो। लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स आर filled first। अच्छा एक रूल और है हमारे पास, इसको हम कहते हैं हंस रूल। अब अगेन इनके नाम याद नहीं करने हैं, इनकी डेफिनेशन भी याद नहीं करनी है, इन रूल्स को बस आपने एग्जीक्यूट करना सीखना है, ठीक है। हंस रूल ये कहता है कि whenever you are filling two electrons in a one single orbital, electrons are filled singly first। पहले लिखते हैं फिर समझते हैं। electrons are filled singly first, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, देखो, अच्छा मैं थर्ड रूल भी लिखवा देता हूं, दैट इज पॉलीज exclusion principle। Again, you are not supposed to remember the name of these rules, nor you will be asked the statement of these rules. You will just know how to execute these rules while making the electronic configuration। Electrons are filled singly first, इसका मतलब भी समझ लेते हैं। Pauli's exclusion principle says that each, okay, two orbitals, sorry, two electrons in the same orbitals have opposite spin। क्या मतलब है इस बात का, लेट्स से इफ वी हैव अ नाइट्रोजन एटम, its electronic configuration is 1s2, 2s2, 2p6, 6 oh sorry 2p4, sorry it's 2p3 not 2p4, 3 4 5 6 7, right? If you draw the energies of these orbitals, so first we have 1s, right? 1s is at the lowest energy level, इसका ना मैं एक ऑर्बिटल बना रहा हूं 1s का, then 2s will be at a higher energy level than 1s, and then we will have 2p, 2p is slightly at a higher energy level than 2s। अच्छा, अब ये जो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है और हंस रूल है, दोनों को एक साथ साथ देखना है, ठीक है। ऑबॉस रूल ने तो हमें फिलिंग ऑर्डर बताया ना कि पहले 1s पे होगा, फिर 2s पे 2p पे 3s पे 3p, ठीक है, वो तो हमने प्रैक्टिस भी कर लिया है। Pauli's exclusion principle हमें ये कहता है कि 1s में we have two electrons, right? So these two electrons, when they are filled in the same orbital, they must have a opposite spin। And what does that mean by opposite spin? कि 1s में if we are drawing two electrons, we will draw one electron with a single arrow। अगर मैंने एक इलेक्ट्रॉन एक एरो अपवर्ड बनाया हुआ है, तो द अदर इलेक्ट्रॉन इन द सेम ऑर्बिटल would have to be drawn like this, उसमें एरो डाउनवर्ड बनेगा। This shows that these two electrons which are present in the same orbital, they must have opposite spin। अब ये opposite spin से क्या मतलब है? See, if you consider a electron as a sphere, अगर आप as a sphere electron को देखोगे, तो these two electrons are staying in the same orbital, although they both are negatively charged। So how come they are staying in the same orbital? They should be repelling each other, na? They should repel each other because they both have negative charges, but still they stay in the same orbital। How? If you recall Fleming's right hand rule from the physics, देखो कोई इलेक्ट्रॉन है ना, we know that the electrons keep revolving around the nucleus, right? अच्छा एक तो होता है रिवॉल्व करना अराउंड द न्यूक्लियस, एक होता है रोटेट करना। No, they won't collide with each other, they are staying in the same region na? For example, if we have a region of 1s, it's spherical, so these two electrons they occupy the same space, but
though they are in the same space, but they won't repel each other. Repel कर तो रहे, but they won't move away from each other. They will stay in the same space. एक ही एरिया में रहेंगे दोनों. हाँ, they won't collide with each other. ऐसा नहीं है कि वो कोलाइड करेंगे. दे विल कीप मूविंग ऑन. जैसे अर्थ जो है वो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है एंड मून इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन. तो दे हैव देयर ओन स्पेसिफिक ऑर्बिटल्स, रैंडमली मूव कर रहे हैं, बट दे वोंट कोलाइड विद ईच अदर. ऑल्दो दे शुड बी रिपेलिंग ईच अदर ना, एक दूसरे कभी ना करीब तो गुजरेंगे ना एक दूसरे से, तो रिपेल करके दूर दूर हो जाना चाहिए. एंड दे डू रिपेल ईच अदर, बट स्टिल दे स्टे इन द सेम स्पेस. उसका रीजन क्या है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व तो कर रहा है, बट वो अपने ऑर्बिट पे रोटेट भी कर रहा है. You guys know the difference between revolving and rotating? Revolving is moving around some particular center. They are revolving around the nucleus, but they are rotating about its own axis as well. Electron यूं भी घूम रहा है और न्यूक्लियस के सराउंडिंग में भी घूम रहा है. जैसे कि अर्थ है, इट रिवॉल्व्स अराउंड द सन, जिससे हमें सीजन मिलते हैं, पूरा एक साल मिलता है. And Earth, it also rotates about its own axis, जिससे हमें day and night मिलता है. So electrons, they are rotating on its own axis. They are also revolving around the nucleus. तो जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं वो तो एक अलग चीज है, वो तो हम देखते आ रहे हैं वो लेवल से. बट जब वो रोटेट करते हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन्स आर देमसेल्फ अ चार्ज पार्टिकल, एंड व्हेनेवर अ चार्ज पार्टिकल इज इन मोशन, it generates a magnetic field around it. ठीक है, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है, इफ यू रिकॉल द फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, इफ यू हैव अ कंडक्टर with current going on in this direction, so if you grab this conductor with your right hand, the direction of thumb will show the direction of electric current, and the curl of a finger will show the direction of magnetic field, right? But if the charged particle is moving in a circular motion, then this rule slightly changes. The curl of a finger represents you the direction of electric current, and the direction of thumb represents you the direction of north pole. ठीक है, याद अभी भी नहीं करना है इसको, केमिस्ट्री के लिए याद नहीं करना, बट ऑब्वियसली फिजिक्स में तो पढ़ोगे ना कहीं याद तो हो ही जाएगा आपको, करना तो है वन वे और दी अदर. So what I am trying to say is, if these two electrons are present in the same orbital, they must rotate in the opposite spin. What does it mean? If one electron is having a anti-clockwise rotation, the other electron must have a clockwise rotation. अगर एक clockwise rotate कर रहा है, तो the other electron must be rotating anti-clockwise. Due to which one of the electron will generate a magnetic field with a north pole in upward direction, and the other electron will generate a magnetic field with the north pole in the downward direction. So if you see the south poles and the north poles of these two electrons would face each other, और नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है. इलेक्ट्रॉन्स के चार्जेस की वजह से रिपल्जन है और मैग्नेटिक पोल्स की वजह से अट्रैक्शन है. So that's why they can stay in the same orbital, although they have a force of repulsion, but at the same time they also have a force of attraction which keeps them in the same orbital. If they had not been revolving in the opposite direction, अगर वो रोटेट नहीं कर रहे होते अपोजिट डायरेक्शन में, तो फिर मैग्नेटिक पोल्स भी एक दूसरे को रिपेल कर रहे होते, क्योंकि एक ही साइड पे दोनों नॉर्थ पोल बन रहे होते, तो वो तो और रिपल्जन होती. तो इट मींस दीस टू इलेक्ट्रॉन्स कैन नेवर स्टे इन द सेम ऑर्बिट. फॉर एनी टू इलेक्ट्रॉन्स टू स्टे इन द सेम ऑर्बिटल, दे मस्ट रोटेट इन अपोजिट डायरेक्शन. उसको हम कह रहे हैं दे हैव अपोजिट स्पिन. दैट्स इट. आपको बस इतनी सी बात याद होनी चाहिए, जब आप सेम ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन्स बनाओगे तो एक का एरो अपवर्ड बनाओगे, एक का एरो डाउनवर्ड बनाओगे. जो एरो अपवर्ड और एरो डाउनवर्ड है, इसका मतलब है कि दे आर रोटेटिंग इन दी अपोजिट डायरेक्शन. ठीक है, और जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन बनाओगे, मतलब द इलेक्ट्रॉन यू आर ड्राइंग ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, its arrow should be pointing upwards, and the electron you are drawing on the right hand side, its arrow should point downwards. ये मतलब है इस बात का. Got my point? So 1s of nitrogen has 2 electrons. We have drawn 2 electrons. And 2s of nitrogen also have 2 electrons. You have to draw 1 electron facing upward and 1 electron facing downward. And 3p of nitrogen has how many orbitals? 3 orbitals. One is known as 3px, the other is known as 3py, and the third one is known as 3pz. Now there is another rule which is known as Hund's rule. Hund's rule says that
इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड सिंगली फर्स्ट, या इसको हम पूरा लिख देते हैं, इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल्स आर फिल्ड सिंगली फर्स्ट। मतलब देखो, अब 3p में यू हैव टू ऐड ऑफ टोटल ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स, इट हैज 3 ऑर्बिटल्स, ईच ऑर्बिटल कैन होल्ड मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन आप ये जो 3 इलेक्ट्रॉन है, आप ऐसे नहीं करोगे कि 3px में आपने 2 इलेक्ट्रॉन बना दिए, नहीं। If we have orbitals of the same subshell, so all of these orbitals will be filled singly first. मतलब पहले एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा सब में, आप 3px में एक इलेक्ट्रॉन डाल दोगे, then you have to move forward because these are the orbitals of the same subshell. तो आपने 3py में सेकेंड इलेक्ट्रॉन रखना होगा एंड देन यू हैव टू ऐड इलेक्ट्रॉन इनटू 3pz। अब ऐसे नहीं कर सकते कि आपने बोला कि 3px में मैक्सिमम 2 आ सकते हैं तो हम 2 इसमें डाल दें और 1 इसमें डाल दें, नो। You have to fill all the orbitals with a single electron first, and then if you have more electrons, then you will start pairing these electrons. So, but the nitrogen atom has only 3 electrons in its 3p, so each electron will be there in one particular orbital. 1 2 3 तीनों हो गए। अब अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन होते तो फिर मैं अब जो है 4th इलेक्ट्रॉन 3px में डालता विद द अपोजिट स्पिन, बट अभी क्योंकि नाइट्रोजन में है नहीं, इसलिए हम अभी डालेंगे। गॉट माय पॉइंट? इसकी और करेंगे प्रैक्टिस, इसको हमने यहाँ पे नहीं छोड़ना है, इस कॉन्सेप्ट को वी विल कैरी इट, बहुत सारे एग्जांपल्स करेंगे इसके। समझ आई बेटा यहाँ तक? किसी का कोई सवाल है, कुछ पूछना है? अबरार, अलिशबा, अरीज, मरियम, अब्दुल्ला, सारा, वजीहा, जुनैरा। नो क्वेश्चन? आर यू श्योर? चलो। 3p is one subshell and this 3p subshell has 3 orbitals। 3p एक सबशेल है, ठीक है, और उसके पास 3 ऑर्बिटल्स। देखो 3 जो है वो प्रिंसिपल क्वांटम शेल है, इसमें एक सॉरी 3p नहीं था, ये 2p था। व्हाट आई एम डूइंग यार, इट वाजंट 3p, दैट वाज एक्चुअली 2p। आई एम सो सॉरी, वर्डिंग तो बनी हुई ना। हाँ, 3p कहाँ से आ गया? 2p था ना, हर जगह 2p लिखा हुआ है, हमने 3p लिख दिया। तुम लोग कुछ बोल भी नहीं रहे हो, सो रहे हो सब। इट इज 2p, ठीक है। अभी जो 2p है, ये सेकंड प्रिंसिपल क्वांटम शेल है, इसके पास एक 2s भी है, इसके पास एक 2p भी है। तो सेकंड शेल के पास एक सबशेल है s सबशेल और एक सबशेल है p सबशेल। s सबशेल के पास एक ही ऑर्बिटल है, लेकिन 2 के p सबशेल के पास 3 ऑर्बिटल्स है। ये मतलब है इसका, ठीक है। ऑल गुड? हाउ कम ऑल गुड? आई हैव रिटन 3p इंस्टेड ऑफ 2p एंड यू आर सेइंग कि हाँ सब सही है, सब ठीक है, ऑल गुड। सो रहे हो सब? जागो। Why doesn't 2s have 2 subshells? 2s has, देखो ये 2s का मतलब है दिस इज s सबशेल ऑफ सेकंड प्रिंसिपल क्वांटम शेल। ये 2 का s है, ये 2s नहीं है, मतलब ये दो s अलग अलग नहीं है, एक ही s है, लेकिन कौन से शेल का s है? सेकंड प्रिंसिपल क्वांटम शेल का s सबशेल। 2p मींस p सबशेल ऑफ अ सेकंड प्रिंसिपल क्वांटम शेल। है तो ये एक ही सबशेल, लेकिन सेकंड प्रिंसिपल क्वांटम शेल का। 1s मीन फर्स्ट प्रिंसिपल क्वांटम शेल एस सबशेल, 2s मीन सेकंड प्रिंसिपल क्वांटम शेल का एस सबशेल, 2p मीन सेकंड प्रिंसिपल क्वांटम शेल का p सबशेल। सारा यही पूछ रहे हो? जुनैरा देखो बेटा, 3 इलेक्ट्रॉन सिर्फ सेकंड शेल में नहीं है, सेकंड शेल के 2p में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं और सेकंड शेल के 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूंगी टोटल सेकंड शेल ऑफ नाइट्रोजन जो है उसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो 3 + 2 इज 5 इलेक्ट्रॉन। जैसे ओ लेवल में बनाते थे, फर्स्ट शेल ऑफ नाइट्रोजन विल हैव 2 इलेक्ट्रॉन एंड सेकंड शेल विल हैव 5 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो इसके फर्स्ट शेल में वी हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड शेल में वी हैव टोटल ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन्स,
लेकिन उनको भी हमने सेग्रीगेट कर दिया ना, कि सेकंड शेल में जो 5 इलेक्ट्रॉन्स है उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन 2s सब शेल में है और 3 इलेक्ट्रॉन 2p सब शेल में। ठीक है। एंड p सब शेल हैज अ फर्दर ब्रेक डाउन इनटू 3 ऑर्बिटल्स। हमने ये पढ़ा था ना कि जो s सब शेल होता है उसके पास सिर्फ एक ऑर्बिटल होता है, p सब शेल हैज 3 ऑर्बिटल्स। सिमिलरली d सब शेल हैज 10 ऑर्बिटल्स और f सब शेल के पास 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। सारा ये वाली क्लासेस दी थी ना? ओके। थोड़ा सा ना रिकॉल कर करके आपको क्लास में बैठना पड़ेगा, क्योंकि ये पहले चैप्टर में ना बहुत सारी चीजें न्यू हैं। एक बार ये चैप्टर पास हो जाएगा तो फिर उसके बाद फिर आगे इतनी सारी चीजें न्यू नहीं आएंगी आपके पास। चलो बेटा, जा सकते हो अब आप लोग। अल्लाह हाफिज।